previous session, what we were doing, we have actually completed our residential status in case of an individual. But now let me tell you, when it comes to the residential status now, once we define whether an individual is resident or not, further we redefine him whether he's ROR or RNOR. Okay, so for this, I'm sharing my PPT with all of you, and then let's proceed further. So we were doing our residential status, and today, maybe in next half an hour, we will be completing the same. Then we will start with our salary chapter. Okay, so let's start now. In the residential status, I told you about this, that first, in case of an individual, we will define whether he is resident or not. If it is clear that he is resident, then in that case, we need to define him whether he is ROR or RNOR, right? Now, what is the condition of ROR and RNOR? But before starting with the same, there are two conditions which one needs to satisfy in order to become a resident of India. Condition number one says that if his stay in India is, say, 182 days or more, if his stay in India is 182 days or more, then in that case, he will be a resident of India. In that case, he will be a resident of India. What about the condition number two? The condition number two says that if your stay in India is, say, 60 days or more. So if there's an individual whose stays in India is, say, between 60 days to, let's say, 181 days. Because for 182 days, obviously, this condition number one needs to be followed, right? So for the condition number two, it says that if your stay in India is 60 days or more and up to 181 days, and in the last 4 years, if your stay in India is 365 days or more, then in that case, you will be considered as resident of India. This is something which we have covered in our previous sessions already. Then followed by we had solved many questions, so I'm not focusing on those questions right now. Okay, and there were two exceptions, if you remember. And what were those exceptions? That exception number one says that for a person who leaves India, then in that case, if there's an individual who is a citizen of India, in case if there's an individual who is a citizen of India and not a person of Indian origin, do you remember what was person of Indian origin? Can anyone please tell me? Who was person of Indian origin? Which the stay in last financial year is more than 182 days. So, and also citizenship of the Indian person. Person of Indian origin ये होता है. Baki, everyone else, please tell me who is person of Indian origin? Citizen of Pakistan before India was divided. Pakistan, Bangladesh. Yes. So person of Indian origin is basically a person who belongs from undivided India. Okay, that is the person of Indian origin. Now, person of Indian origin is basically a person who belongs from undivided India. So who is person of Indian origin? A person of Indian origin is basically someone who belongs from undivided India. Okay. Now, if a person who belongs from undivided India, his grandfather, great-grandfather can also belongs to undivided India only. Okay. Now, if there's a person who leaves India, then in that case, I need to check whether he's individual, whether he's citizen of India. Person of Indian origin हमारा नहीं आएगा. And if he's leaving India, if he leaves India as a crew member of the Indian ship or for the purpose of employment outside India, in that case, this condition number two is not applicable. Only condition number one is applicable, right? Now, what about the other condition, exception, I would say? The other exception is that for a person who comes on a visit to India. So there are two scenarios where an individual who is an Indian citizen and also a person of Indian origin comes on a visit to India, then in that case, this condition number two is not applicable. However, if there's an individual who is an Indian citizen and a person of Indian origin, and if his total income from Indian sources exceeds 15 lakh rupees, then in that case, 120 days plus 365 days or more in the last 4 years, this is the condition which we need to check. And if we do not fall into this category, let me tell you. So always remember, these are the steps. So step 1, step 2, step 3, and this is your step 4. Okay. These are the steps which we need to follow in our mind. So this is the process which we need to follow while
say solving any questions, or basically not solving any questions. I would say we are here like handling all these things in our practical world. So suppose if there's a client comes, he says that I am the Navy officer, okay, and I was in the ship, let's say for 7 to 8 months in India. Then obviously you need to check all these things, like you need to flow, or basically you need to cross check whether he's resident of India or not, based on these steps only. So first you will check whether his stay in India was 182 days or more. Then you will come to this exception, then third exception, then step 3, then step 4. And based on this, you will decide whether he is resident of India or not. Is that clear to every one of you? Yes, ma'am. Then I also told you about this deemed resident. Why? Deemed resident is someone, if there's an individual who stays in each and every country, and does not basically, when it comes to his residential status, he's not fulfilling the residential status conditions of any of the country. If I repeat the same in Hindi, एक ऐसा इंडिविजुअल लेते हैं जो बहुत रिच हो, लेट्स से एक्टर्स वगैरह ले लेते हैं, अलग अलग कंट्रीज में जाके रहते हैं, दे कैन बेसिकली इजिली वो जो है अपना रेजिडेंशियल स्टेटस को अलग कर सकते हैं कि वो किसी कंट्री की रेजिडेंट ही नहीं है. सो इट सेज दैट इफ ए पर्सन हु इज नॉट अ रेजिडेंट in any of these countries, in any of the country, okay, if there's a person who is a resident who is not a resident in any of the country, then in that case we need to check whether his income from Indian sources exceeds 15 lakh rupees. And if the income from Indian sources exceeds 15 lakh rupees, then in that case he will be considered as deemed resident. कि भले भी रेजिडेंशियल स्टेटस का जो कंडीशन है he is not fulfilling the same, still we will consider him as deemed resident. I hope it is clear to every one of you. Is this clear? Yes, ma'am. Okay, perfect. Now, this is something which we have covered earlier only. Okay. अब एक और चीज कर लेते हैं, HF के बारे में करते हैं. ठीक है, HF मेरा रेजिडेंट है या नहीं है, हाउ विल आई गेट टू नो अबाउट द सेम? HF इज योर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ओके, HF स्टैंड्स फॉर हिंदू undivided family. Okay, now if my HF is किसी को नहीं पता HF क्या होती है, अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो ये देखा आपने ग्रेट ग्रैंडफादर, देन उनके फादर, उनसे उनके भाई, एंड देन देयर सन, लाइक दिस. ऐसे जैसे मूवीज में आपने देखा होगा. ये जैसे अंबानी फैमिली देख लो, कि एक आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बेसिकली एक हिंदू फैमिली में वो जो एक से आई वुड से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक तरीके से जो चीजें चलती हैं कि दादाजी हैं, परदादाजी हैं, फिर उसके बाद से पिताजी हैं, फिर बच्चे हैं, राइट. सो वो अपना एक फैमिली बिजनेस को रन करते हैं. दे रन देयर फैमिली बिजनेस. सो दिस इज योर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ओके, अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में डू यू एग्री कि जो दादाजी टाइप के लोग होंगे वो हमारा कंट्रोल होगा, उनका जो दादाजी टाइप के लोग होंगे उन्हीं का कंट्रोल होगा बिजनेस के ऊपर, मतलब डिसीजंस के ऊपर. Yes, sir. राइट. सो ये HF क्रिएट कर दी जाती है, अलग से हम लोग डीड वगैरह बना के वी क्रिएट दिस HF. ओके, नाउ जब हम ये HF क्रिएट करते हैं तो इसमें एक हमारा होता है, दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है कर्ता और एक होते हैं मेंबर्स. कर्ता इज बेसिकली समवन जिसके डिसीजन मान्य होते हैं, लाइक ही इज अ मेन डिसीजन मेकर. सो डू यू एग्री, अगर सपोज करो ग्रेट ग्रैंडफादर एंड देन पिताजी वगैरह हो, तो डिसीजन किसका मान्य होगा? ग्रेट ग्रैंडफादर का, राइट. सो ही इज द कर्ता. ओके, अब मुझे इस टाइप की HF का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, तो ये जो HF है, ये जो बनाई गई, ये रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करेगा कर्ता के ऊपर. ओके, कि कर्ता अगर कंट्रोल कर रहा है या मैनेज कर रहा है HF को इंडिया से, चाहे पूरी तरीके से, चाहे होली और पार्टली इन इंडिया, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट. However, if the control and management by कर्ता is wholly outside India, in that case it is non-resident. Okay? तो अगर पूरा बाहर से ही कर रहे हो तो वो पूरा non-resident हो जाएगा. Is that clear to every one of you? Yes, ma'am.
परफेक्ट। देन जब इंडिविजुअल और एचएफ का जब हम रेजिडेंट बता देते हैं, देन वी डिफाइन वेदर ही इज आरओआर और आरएनओआर। ओके, what is ROR, RNOR? We will see. I know today's session is basically on ROR and RNOR only. Let's talk about firm, AOP, and BOI. Can anyone please tell me the difference between these three? What is firm, what is AOP, and what is BOI? मैम फर्म के अंदर तो एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म आ जाते हैं। Yes. ये हो गया आपका और AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन हाँ, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे कुछ नहीं। वो बीओआई का हो गया आपका बिजनेस ऑफ इंडिविजुअल। नो, body of individual ही होता है, but मतलब पर्पस क्या है दोनों में डिफरेंस, तीनों में डिफरेंस क्या है? फार्म जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक एंटिटी है जो कि मतलब ये एक फार्म को कंसिडर किया जाता है मेरे हिसाब से मल्टीपल्स 2-3 पर्सन के कम ये डिसीजन मेकिंग करके डिसीजन 3-4 लोगों का कंबाइन कम्युनिकेशन मिक्स करके हम एक फार्म को ऑपरेट करते हैं। यूपी के इंडिविजुअल का जो एज पर माई नॉलेज मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है यूपी में जो आ रहे हैं आपके एसोसिएट ऑफ पर्सन, जब हम किसी पर्सन को एसोसिएट करते हैं बिजनेस ओपन करने के बाद एसोसिएट हमने किसी बंदे को हायर किया जो उसको एसोसिएट करके कोई भी फॉर्म ओपन कर लिया उसने एज ए खुद इंडिविजुअल डिसीजन ले रहे हैं। और बीओपी जो है मेरे हिसाब से इंडिविजुअल पर्सन कोई भी अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म जस्ट लाइक मैंने आज सुबह मॉर्निंग उठा एक चाय का दुकान ओपन कर लिया उसके बाद मतलब खुद सेल्फ कुछ भी ओपन मतलब अगर अभी मैंने डिसाइड किया मुझे ये काम स्टार्ट करना है और मैंने कल मॉर्निंग से उठ के काम स्टार्ट किया वो उसमें बीओआई में जाएगा। Anyone else who would like to add something? यहाँ पे मैम फर्म जो है दो या दो से ज्यादा लोग जो है एक उनका जो गोल होता है वो सेम होता है बिजनेस का। एंड एओपी क्या होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें पर्टिकुलर बिजनेस करना है और सपोज एओपी आई गेस टेंडर वगैरह के लिए होता है कि जैसे ही पर्पस खत्म हो गया देन ये बिजनेस जो है एंड कर देते हैं। एंड इंडिविजुअल सिंपल रहता है कि जो है मैंने डिसाइड कर लिया कि कल से मुझे ये चीज स्टार्ट करनी है, देन इंडिविजुअल पर्सन स्टार्ट कर देता है। Okay, ठीक है। So let me tell you the difference between the firm, AOP and BOI. So अभी किसने आंसर किया था? I think प्रियंका ने। यस मैम। So प्रियंका का थोड़ा थोड़ा आंसर सेम है, मतलब सही है, बट बाकी एक बार हम दोबारा से देखते हैं व्हाट इज फर्म एंड व्हाट इज AOP एंड व्हाट इज BOI। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्म इज बेसिकली लाइक फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके? Now you decide that you want to start your own business. You share your idea with your friend as well. आप अपने friend के साथ भी share करते हो कि भाई ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है. I want to start this business. Then what will happen? Say this is Mr. A and then you have Mr. B as well. भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है? And then say Mr. C, Mr. D, इस टाइप से। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग, जैसा कि प्रियंका ने भी बोला, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक डिसाइड करते हैं कि हम एक कोई काम करना चालू करेंगे खुद से, ठीक है, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज फर्म। ओके, अब ये जो फर्म है ये बेसिकली LLP के फॉर्म में भी हो सकती है। सो बेसिकली कैन यू कुछ LLP अगर आपने क्रिएट करी विच इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सो वो LLP के फॉर्म में भी हो सकती है। कुछ फर्म जो है वो रजिस्टर्ड भी होती है। रजिस्टर्ड मतलब कोर्ट में जाके एक हम डीड बनाते हैं, ठीक है, और कोर्ट में जाके प्रॉपर अटेस्टेशन वगैरह वो सब होता है, ठीक है। और कुछ अनरजिस्टर्ड भी होती है, ठीक है, ये जस्ट प्रॉपर ऐसे नोटराइज करा के बस वो अनरजिस्टर्ड होती है, ठीक है। सो जो फर्म है वो मेरी दो टाइप की होती है बेसिकली, LLP के फॉर्म में और एक पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में। वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। तो कोई भी जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक डिसाइड करते हैं कि हमें बिजनेस करना है तो वो आएगा। अब क्यों करेंगे बिजनेस? क्योंकि हो सकता है वी वांट कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 50:50 हो, या बेस्ड ऑन कैपिटल आप लोग डिवाइड करना चाहो कि लॉस भी शेयर करेंगे और प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। सो दैट इज माय फर्म। व्हाट इज AOP? द फुल फॉर्म ऑफ AOP इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्संस। This is my association of persons. Okay. Now, association of persons, have you heard about Resident Welfare Association?
सुना है किसी भी सोसाइटी में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं? RWA. Okay. So what is my association of persons? Basically, when many individuals come together, when many individuals, or it can be entity as well, individual भी आ सकते हैं साथ में, companies भी आ सकती हैं. Okay. When many individuals come together for a particular objective, like for example, let's talk about the Resident Welfare Association. This is my AOP only. Okay. The Resident Welfare Associations means AOP only. Why? Because this is an association of persons who wants to basically entertain few objectives, like जो भी वहाँ के रेजिडेंट है उनको प्रॉपर बिजली आ रही है या नहीं. Let's organize the होली पार्टी, दिवाली पार्टी like this. Okay, this is my residents की welfare के लिए मैंने association बनाई. So this is my association of persons and its objective is basically on continuous terms कि पूरा का पूरा ये चलता ही रहेगा. ठीक है, एक बार RWA बन गई, जब तक वो सोसाइटी है तब तक वो चलती ही रहेगी. और मोस्टली सोसाइटीज एग्जिस्ट फॉर say more than 100 years, 200 years as well. So that's a normal scenario. So ये हमारा RWA हो गया. Let's talk about body of individuals, BOI. What is my body of individuals? So let's say we have the birthday of say Sudeep का birthday है. Okay, so let's assume Dhruv, Praveen, Poonam, और लेट्स से देवांशी, गोविंद, ये सब ने मिलकर ये सब लोग इकट्ठे हुए एंड दे सेड लेट्स सेलिब्रेट सुदीप्स बर्थडे. ओके, लेट्स सेलिब्रेट सुदीप्स बर्थडे. और ये जो हम बर्थडे मना रहे हैं इसके लिए थोड़े थोड़े फंड्स हम इकट्ठे करते हैं. ओके, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. ओके, फंड्स इकट्ठे करे, सबने पैसे पैसे कंट्रीब्यूट करे, ऑर्गेनाइज किया, सुदीप का बर्थडे आया, उसको सरप्राइज दिया, बर्थडे खत्म. ठीक है. सो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स is basically, let me tell you what is body of individuals. Body of individuals is something which you create for a particular purpose, and then when this purpose gets completed, this body of individuals is the basically ये wind up हो जाती है. Okay, so the example which I have taken here right now, like there are say 4 to 5 individuals who have decided to celebrate Sudeep's birthday. So my objective is to celebrate Sudeep's birthday. Okay, now they have accumulated together, like these are the body of individuals, so individuals only. Okay, these are the body of individuals. Whereas AOP में आपकी firm भी member बन सकती है, company भी member बन सकती है, but when it comes to BOI, only individuals can be the member of this entity. Okay, so body of individuals where the individuals come together to complete a particular objective, और जैसे ही वो objective complete हुआ, then they wind up this BOI. Okay, so this is your body of individuals. Like from the business perspective, when we will create BOI, so let's say have you seen sometimes what happens कि कुछ लोग कुछ events organize करते हैं. Yes, ma'am. एंड वो जो इवेंट्स होते हैं इज टू लेट्स से कैंसर पेशेंट्स के लिए है कि जो भी उस इवेंट से हमारा पैसा आएगा वो मैं कैंसर पेशेंट्स को दे दूंगा. आई हैव सीन मेनी कॉलेज स्टूडेंट्स स्टैंडिंग आउटसाइड द मेट्रो स्टेशन and then they are asking or basically collecting money as a donation for say cancer initiative or something like this. Have you seen these type of individuals? At least here and there, I have seen many college going students like this, especially जहाँ पे colleges हैं उस वाले metro station पे, तो definitely I have seen them. So what I'm trying to say, what they are actually doing, they have created an event. कुछ लोग events भी करते हैं कि अब हम इससे जो भी पैसा आएगा वो कैंसर पेशेंट्स के लिए होगा. जैसे अदर पहले कोविड के लिए चलता था कि कोविड
के लिए हम लोग एक इवेंट करें एंड देन व्हाटएवर द मनी वी विल रिसीव वी विल बेसिकली गिव इट टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द of those families जहाँ पे जो जिनको अफेक्ट हुआ है, right? So these are the difference between the firm, AOP and BOI. Now let's talk about who is resident in India in that case. I mean, how we will define the residential status of. मैम मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था, हाँ जी। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का रजिस्टर्ड क्या है, मतलब कोई बॉडी करता है या खुद उनका सोसाइटी, या किस लेवल पे उनका रजिस्ट्री होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन? हम लोग खुद करते हैं AOP का रजिस्ट्रेशन और BOI का भी. So basically let me tell you how do we register the AOP और BOI. MCA पे तो नहीं होता है, ये तो आप correct, agree. हाँ वही, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन किया कहाँ पे MCA पे होता है। नहीं. हाँ एमसी पे तो नहीं होता है, एमसी तो फार्म वाला ये होता है, कंसीडर होता है जस्ट लाइक अगर पार्टनरशिप हो तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का क्या कोई अथॉरिटी से होता है या ओनली फॉर बोर्ड मेंबर डिसाइड करने के बाद जो भी उसके मेंबर्स? बेसिकली डीड्स वगैरह बनती हैं, ठीक है, जो प्रॉपर डीड वगैरह होती है ना एसोसिएशन की, वो बनती है। वो डीड बना के नोटरी करा के बाद उसको रख लेते हैं, उसे भी वैलिड माना जाता है। हाँ, बट वो एक्ट के अंदर नोटरी करा के तो नहीं, उसमें थोड़ा सा और होता है कि कोर्ट से जाके अप्रूवल लेके। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं अपनी भी बात करूंगा, मुझे AOP बनानी है तो वी डू हायर दी एडवोकेट्स, जो लोग करते हैं मतलब एडवोकेट्स वगैरह, है ना। हम लोग खुद से नहीं बनाते, मतलब अगर मैं जैसे हम लोग भी बनाते हैं, या जैसे सिट इंडिया बिजनेस बनाते होंगे तो आपके जो एडवोकेट्स होंगे वो बनाते हैं। ठीक है। तो ये डायरेक्टली कोई पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता, डीड्स वगैरह बनती है, देन उसको हम करते हैं। मैम एक क्वेश्चन ये था, AOP और BOI का अलग से पैन कार्ड अप्लाई होता है या कैसे होता है? अलग अलग एंटिटीज हैं। वी कैन अप्लाई द पैन कार्ड फॉर बोथ ऑफ देम सेपरेटली। इसका अलग से, इसका भी अलग से। इनका कोई कंप्लायंसेस होता है AOP और BOI का? कंप्लायंस इशू, कंप्लायंस मतलब जैसे कि हमारा फार्म्स में कंप्लायंसेस करना होता है, और AOP और BOP में कोई पर्टिकुलर ये है जो कंप्लायंस भी मैंडेटरी है? देखो मैं बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव दिस NGO जो कि डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए काम करती है, ठीक है। NGO वाले पे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, NGO वाले पे तो समझ में आ रहा है। मेरा कंसर्न है AOP और BOI में। सेम ही है, सेम कंप्लायंस है, लाइक जो आपका इनकम टैक्स की रिटर्न जानी है, जो भी GST जानी है, अगर GST ले रखा है तो सेम ही वो है। तो कंप्लायंस इशू बेसिकली आप ये मान के चलो, अगर कोई एंटिटी है, ठीक है, उसके बेसिक कंप्लायंस तो सारे एज इट इज चलेंगे। हाँ, अगर उससे कोई NGO है या कुछ है तो उसका कुछ एडिशनल कंप्लायंसेस हमारे और ऐड हो जाते हैं। अदरवाइज वो एडिशनल को अगर भूल जाओ तो बेसिक कंप्लायंस हमारे वैसे ही है। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, आई एम मूविंग फॉरवर्ड नाउ। हाउ डू वी डिफाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ फर्म, AOP एंड BOI? सो व्हाट यू नीड टू चेक कि फर्म के अंदर, AOP के अंदर एंड BOI के अंदर, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्टली इन इंडिया, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली या तो पूरी तरीके से या फिर पार्टली जो है इंडिया के अंदर हो, तो इन दैट केस this firm, AOP and BOI, will be considered as resident of India. Okay, will be considered as resident of India. However, if the control and management is situated wholly outside India, then in that case it will be considered as non-resident. Now, control and management कैसे होगा? जैसे for example partners हैं, partners बाहर ही रहते हैं, दुबई में रहते हैं, let's say US में रहते हैं, UK में रहते हैं, okay, so वो जो पार्टनर्स हैं, ऑब्वियसली अगर बाहर ही रहते हैं तो सारे जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, जो भी डिसीजंस है, वो बाहर से हो रहे होंगे। तो अगर बाहर से हो रहे हैं सारे के सारे, सो दैट मींस दिस फर्म इज माय नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट अबाउट AOP? AOP में हमारे ट्रस्टीज होते हैं, ओके, AOP में हमारे ट्रस्टीज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अगर वो बाहर हैं, सारे डिसीजन बाहर से हो रहे हैं, तो हमारा वो आ जाएगा। और BOI में भी से लेट्स से कोई ऑथराइज्ड पर्सन है, अगर वो बाहर है, सारे डिसीजन वहीं से लिए जा रहे हैं, तो भी हमारा वो नॉन रेजिडेंट। समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था इसमें। यस मैम आपने कहा था कि इनकम टैक्स जो है रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है, राइट? जिसमें अगर हमारा इंडिया में अगर फर्म बनाया है AOP यानी AOP और BOI बनाया है, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर है, तो इंडिया में फिर जब हम इनकम टैक्स वगैरह फाइल करेंगे तो फिर उसमें कैसे करेंगे? फिर मतलब डिसीजन मेकर अगर बाहर है मगर बनाया तो AOP BOI इंडिया में है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे अगर हम इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो कैसे? मतलब वो नहीं समझ में आया।
सेक्शन आता है which is section 9. हम्म सेक्शन 9 कहता है इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. तो कुछ ट्रांजैक्शंस होती है जो कई बार बाहर ही हो रही होती है ठीक है. बट फिर भी इंडिया में टैक्सेबल होती है. अच्छा, मतलब ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल, पता नहीं आपने सुना है या नहीं, वोडाफोन का एक बहुत बड़ा केस था. वो जो वोडाफोन का केस है उसकी वजह से डिपार्टमेंट ने उनपे मोर देन लाइक से 10,000 करोड़ समथिंग की लायबिलिटी लगा दी थी. ठीक है, वो ट्रांजैक्शन बाहर की बाहर ही हुई थी, इंडिया में नहीं हुई वो ट्रांजैक्शन. फिर भी वो इंडिया में टैक्सेबल थी. हाँ, मैंने ये वाला केस मैंने सुना है मैम, जिसमें हाँ. इंडिया में डीम मान लिया गया था कि उसमें पेमेंट उनको सारी करनी पड़ी थी वोडाफोन को. एग्जैक्टली. बट इवेंचुअली वोडाफोन जीत गया तो उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ी. ठीक है. तो 2022 या 23 में डिसीजन आ गया था कि वोडाफोन वाज दी, मतलब जो है उसने केस जीत लिया था. ठीक है. बट फिर भी वो 2012 से लेकर ये लगा लो 2022 तक उसको 10 साल तक वो एक तरह से वो तलवार लटकी रही कि ये पेमेंट करनी है. ओके. तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकम है वो जो हम आगे पढ़ेंगे. बट क्योंकि अगर मैं सेक्शन 9 इसके बाद स्टार्ट करूंगी ना तो वो बहुत ही बोरिंग सा लगेगा, ऐसा लगेगा क्या थ्योरी कर रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए मैं स्टार्ट करूंगी सैलरी चैप्टर से. देन जब सैलरी चैप्टर हो जाएगा तो बीच में सेक्शन 9 पकड़ लेंगे कभी कभी. ठीक है. ऐसे कर. ठीक है. चलो अब कंपनीज के केस में बात करते हैं. ठीक है. और जो भी अब मैं बात कर रही हूँ ना, लेट मी टेल यू, मैं बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में बात कर रही हूँ. सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स टू यू. शैल वी स्टार्ट? यस मैम. Okay. Now let's talk about the companies. Okay. When it comes to companies now, any company which is incorporated in India, कोई भी कंपनी जो इंडिया में बनी है ना एमसीए के ऊपर, सारी की सारी रेजिडेंट है. सब रेजिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. कोई भी जो एमसीए वाली कंपनी है, अच्छा एमसीए में भी इंडियन कंपनीज की बात कर रही हूँ, फॉरेन कंपनी भी बनती है, राइट. एमसीए में जो भी इंडियन कंपनी बनी है, दे ऑल आर रेजिडेंट. ओके. For MCA, let's talk about the foreign company, क्योंकि foreign company भी बनती है. उसके लिए you need to define the POEM. POEM stands for Place of Effective Management. ठीक है. And I still remember, actually, I used to teach international taxation to CA final students. Okay. So since I used to teach international taxation to CA final students, I still remember this poem generally takes more than 4 hours. I guess two days, more than 4 hours, like 5 to 6 hours are required for me to define this poem only. Okay, because बहुत सारी conditions and everything है. So let me tell you, this is not something which I'm covering right now, but yeah. So if there's an Indian company, then it will be considered as resident. If there's a foreign company, then we need to define its poem. Poem is basically your place of effective management. और वो एप्लीकेबल भी तब होता है जब आपके टर्नओवर से 50 करोड़ से ऊपर हो. ठीक है. तो इसलिए अभी मैं वो कवर नहीं कर रही हूँ. बट इन द मीन टाइम जस्ट रिमेंबर कि इंडियन कंपनीज के लिए अगर मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करना है, देन ऑब्वियसली इफ देयर इज एन इंडियन कंपनी देन इट इज ऑलवेज रेजिडेंट. ओके. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. We need to determine the ROR and RNOR. Okay. We need to determine the ROR and RNOR. ROR stands for resident ordinary resident and RNOR stands for resident not ordinary resident. Okay. So suppose there is an individual or HF. Suppose there is an individual and HF and you have defined that whether he is resident or not. आपने बता दिया कि resident है या नहीं है. उसके बाद let me tell you, this is only for individual or HF. What about firm, AOP, BOI? इनके लिए नहीं करना होता. ओके. इनके लिए डिफाइन नहीं करना. क्या इनके लिए हमें ROR और RNOR बताना होगा? The answer is no. Only individual and HF. So once you define them whether he is resident or not, then after declaring the same, we will consider whether he is ROR or RNOR. Okay. Whether he is ROR or RNOR. Now, there are many conditions of ROR and RNOR we will understand in today's session only. Okay. First, read what is written here. Only individual and HF is determined as resident
then further we need to check whether he is ROR or RNOR. अगर इंडिविजुअल और एचएफ आपके रेजिडेंट बन गए तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ROR है या RNOR है, ठीक है। सो वो बताने के लिए सबसे पहले तो डिफरेंस समझते हैं कि ROR और RNOR का मतलब क्या है। देखो, अगर कोई इंडिविजुअल ROR है ना, अगर कोई इंडिविजुअल ROR है मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, देन इन दैट केस उस बंदे की ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। इन दैट केस उस बंदे की ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल का मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, ओके, आई एम रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आई एम रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो ROR, then if I'm earning my income say from USA, UK or any other country, say Canada or any other country, okay, even in that case I do not need to pay basically I need to pay taxes on my global income. So whatever the income I'm earning from say USA, UK or any other country, does not matter. Since I am ROR, I have to pay taxes in India. What about if you have paid taxes in say US and UK as well? Then you can claim the credit of it. That's completely okay for us. Okay, you can claim the credit of it. There's this double taxation avoidance agreement. There are so many, say FTC. There's this one form which we file, Form 67, while filing ITR. If you are claiming tax credit of other country, then there are many I would say many forms which we can file in order to get the credit of the same. So we will understand about them as well. But yes, ROR is someone, if somebody is an ROR, then their global income is taxable. Global income means, like for example, if I'm ROR, then if I'm earning an income from USA, UK, Canada, Switzerland, does not matter. All this is basically going to be taxable in India. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Now, what about RNOR? So let's read first ROR conditions पढ़ लेते हैं। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो आप इनकम रिसीव करते हो या आपको मिलने वाली है, तो आप क्या ROR में आओगे? द आंसर इज यस, वो आपका ROR में टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब कंसिडर किया जाएगा। या फिर इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग और डीमिंग टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो भी आपका ROR में आ जाएगा। बट अगर आप आउटसाइड इंडिया से अर्न कर रहे हो, इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, yes, even if such income is not received or brought into India during the previous year, भले ही आप उसको इंडिया में नहीं लेकर आए हो, बट अगर आपने बाहर इनकम कमाई है, then we will consider it as taxable income in India. Okay, this is the conditions of ROR. समझ में आया या नहीं आया? Please tell me. No, ma'am. No. देखो, ऐसे देखो। So see, if there is an individual or HF, if we have defined him as resident, then we need to define whether he is ROR or whether he is RNOR. ROR stands for resident, ordinary resident. Okay. RNOR stands for resident, not ordinary resident. Now listen to me very carefully because this may change your perspective. Like when say अभी ITR फाइलिंग का टाइम आने वाला है, राइट? अब ITR फाइलिंग में अगर आपने किसी को से डिफाइन कर दिया कि ही इज ROR और RNOR, तो उसके पूरे टैक्सेबिलिटी चेंज हो जाएगी। सो दैट इज द रीजन यू शुड बी अवेयर ऑफ कि वो पर्सन ROR है तो क्या चीज टैक्सेबल होगी, अगर वो RNOR है तो क्या चीज टैक्सेबल होगी। अदरवाइज I mean, this is something which is going to change their taxability. So please listen to me very carefully. Look into the screen, please everyone. Please look into the screen. Okay? अगर कोई इंडिविजुअल ROR है, ठीक है, मैं ROR बोल रही हूँ क्लास के पर्सपेक्टिव से, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो जैसे सपोज करो, लेट्स टॉक अबाउट ध्रुव है हमारे पास, ठीक है। ध्रुव की इनकम, ही इज वर्किंग फॉर सेट इंडिया बिज, सो उनकी यहां से इंडिया से बेसिकली सैलरी आ रही है, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड, बैंक में थोड़ा बहुत पैसा होगा तो वहां से सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी,
राइट? ध्रुव ने क्या किया कि लेट्स से ये पैसा थोड़ा सा यूएस के स्टॉक्स में भी, यूएसए में भी लगा दिया, और फिर वहां से आया उसके पास डिविडेंड। ठीक है, उसको किसी कंपनी ने बोला कि एक काम करो, तुम मेरे लिए काम कर दोगे तो थोड़ी सी फ्रीलांस इनकम भी ले लो। वो इनकम आ गई से यूके से। ठीक है, सो नाउ यू नीड टू डिफाइन कि क्या सारी इनकम टैक्सेबल होगी? द आंसर इज यस। सो इफ दिस इज इंडिविजुअल, से ध्रुव है जैसे हमारे पास, उसको यूएस से भी इनकम मिली, यूके से भी इनकम मिली और इंडिया से भी मिली, तो ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। If somebody is ROR, then global income is taxable. कोई ये नहीं बोलेगा कि ये तो मुझे बाहर से मिली थी तो मैं यहाँ पे इस पे टैक्स नहीं दूंगा। नहीं, you have to pay taxes. You are ROR. Okay? बट अगर मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर यूएसए में अर्निंग करने के बाद यूएस में टैक्स पे किया उन्होंने, क्या इंडिया में लायबल थोड़ी रहेगा फिर? नहीं, इंडिया में भी लायबल रहेगा। इंडिया में भी लायबल रहेगा अगर वहाँ पे टैक्स पे किया तब भी। Exactly. वही तो मैं बोल रही थी, मैं उसको उसी चीज को लिख के समझाती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी इंडियन इनकम है, ये इंडिया का है बेसिकली। यूएसए से उसको 10 लाख की इनकम आनी थी, 10 लाख, बट यूएसए वालों ने 1 लाख का टीडीएस काट लिया, 9 लाख रुपीज तो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ओके, 1 लाख रुपीज का टीडीएस यूएस गवर्नमेंट के पास है। डू यू एग्री? यस मैम। बट दिस पर्सन इज ROR, resident, ordinary resident. This 10 lakh is taxable in India. This 10 lakh is taxable in India. Now you will say 1 लाख तो मैं पे कर चुका हूं। This is your question. You will say 1 लाख तो मैं बाहर पे कर चुका हूं, right? So इंटरनेशनल टैक्सेशन में, लेट मी टेल यू, इंटरनेशनल टैक्सेशन में हमारी कुछ ट्रीटीज होती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसको इन शॉर्ट हम मैं DTAA भी बोल सकती हूँ फ्रॉम द क्लास पर्सपेक्टिव। ये जो ट्रीटीज होती है, ये जैसे इंडिया और कनाडा के बीच में हो गई, हर कंट्री के साथ होती है। इंडिया को हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया इन ट्रीटीज की पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया को हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, वेट, आई वांट टू शो यू समथिंग। वी कैन आल्सो कॉल देम एज कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट्स। लेट मी शो यू। कैन यू सी दिस? यस मैम। क्या है ये मेरा? ये कनाडा का है, एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन of income and the prevention of fiscal evasion with Canada. डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए हमारे कुछ एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं कंट्रीज के साथ, और कंट्री का नाम भी अगर आप देखोगे, एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, किसकी गवर्नमेंट? रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, एंड द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली एग्रीमेंट्स होते हैं। तो इस टाइप के इंडिविजुअल्स अगर आप बाहर टैक्स पे करके आते हो, तो जब आईटीआर फाइलिंग का डेट होता है ना 31 जुलाई, उस आईटीआर को फाइल करने से पहले वी फाइल दिस फॉर्म 67 एज वेल, फॉर्म 67। वो फिर हम इन टैक्स का क्रेडिट लेते हैं। कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑब्वियसली वी विल बी कवरिंग द सेम एट लेटर स्टेज। टैक्स का क्रेडिट लेने के बाद देन वी फाइल द आईटीआर, ताकि जो भी इस पे टैक्स आया उसका इसका क्रेडिट तो मिल जाए। ओके, तो मैम ऑलमोस्ट सभी कंट्री के साथ हमारी कोई ट्रीटी होगी, इस तरह की एग्रीमेंट होगा? यस, इंडिया का यूएसए के साथ, हर कंट्री के साथ है। जिसका नहीं होता तो उसमें भी ऑप्शन होता है कि हम कैसे टैक्स को क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। राइट मैम। ठीक है, बट ये ऑब्वियसली ये चीज लेटेस्ट स्टेज की है, मतलब ये लगा लो कि जब एंड के सेशन चल रहे होंगे ना, जब हम सब कुछ कर लेंगे तब आएगा ये। ठीक है, सो बट इट हैपेंस लाइक दिस। नाउ रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। ठीक है, अब दोबारा से मैं उस पीपीटी पे आती हूँ। नाउ आई होप अब आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Read about ROR.
इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसी इनकम जो मैंने रिसीव कर ली है या मैं रिसीव करूंगा, टैक्सेबल है इंडिया में, राइट? या फिर जो इनकम मेरी एक्रू की मैं कमाने वाला हूं, ठीक है, और डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया, तो वो भी मेरा सेक्शन टैक्सेबल है। अगर आउटसाइड इंडिया कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो भी आ जाएगा, टैक्सेबल है, ठीक है। चाहे आप बाहर से, सपोज करो मेरा बैंक अकाउंट यूके में भी है, मेरे यूके के बैंक अकाउंट में डिविडेंड आया 1 लाख रुपए का, मैंने यहाँ इंडिया में नहीं मंगाया बिकॉज वहीं पे खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है यूके में, बट मैं ROR हूँ इंडिया के हिसाब से, तो भले ही आपका पैसा इंडिया में आया हो या नहीं आया हो, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस मैम। ठीक है, चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट RNOR। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट RNOR। RNOR से पहले नॉन रेजिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है, तो डू यू थिंक कि जो हमारी बाहर से अगर वो कोई इनकम कर रहा होगा, तो वो बेसिकली जो अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है और बाहर से इनकम हो रही होगी, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा घर का है ही नहीं, तो वो बाहर कुछ भी अर्न करे, मुझे क्या ही लेना देना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस मैम। तो इसलिए नॉन रेजिडेंट के केस में बाहर से वो कोई भी पर्सन कुछ भी अर्न करे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बाकी इंडिया से रिलेटेड है, ऑब्वियसली मैं टैक्सेबल करूंगा। इसी के लिए मेरा सेक्शन 9 भी देखा जाता है नॉन रेजिडेंट के केस में, ठीक है। तो इंडिया से टैक्सेबल है तो डेफिनेटली मैं इंडिया में कुछ इनकम मैंने कमाई या इंडिया में मैं रिसीव करने वाला हूँ, तो फिर मैं सेक्शन 9 वगैरह लगा के मैं उसको प्रॉपर यहाँ पे टैक्सेबल कर दूंगा। बट मैं बाहर का बंदा हूँ, बाहर ही कमा रहा हूँ, से डोनाल्ड ट्रंप है, वो यूएसए में सैलरी ले रहा है, ठीक है, तो मेरी कोई मजाल है जो मैं यहाँ पे टैक्स लगा दूं? नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे तो फिर सारे लोग आ जाएंगे टैक्सेशन कैबिनेट में, राइट? यस मैम। तो बाहर की इनकम को दूर रखो नॉन रेजिडेंट से, हमें नहीं चाहिए। ओके, अब RNOR के बारे में बात करते हैं, विच इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होते हैं? कि अगर आपकी इंडिया में टैक्सेबल मतलब इनकम है, तो ऑब्वियसली इंडिया में आपका जो भी आप इंडिया से कमा रहे हो या एक्नोवराइज हो रहा है, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर आप बाहर से कमा रहे हो, अगर आप बाहर से कमा रहे हो, तो आपका तब टैक्सेबल होगा RNOR के केस में, अगर वो जो इनकम है वो आपने कमाई फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप RNOR हो, ठीक है, आप एक इंडिविजुअल हो, आपका स्टेटस डिफाइन हो गया RNOR, इन दैट केस आई विल चेक कि जो आपकी इनकम आई बाहर से यूएसए में जो आपकी इनकम है, क्या आप उसको इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो? इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो तो टैक्सेबल मान लो, नहीं कर रहे हो तो उसको इग्नोर कर। ओके, इज दैट क्लियर? इसको समझते हैं इस क्वेश्चन से। देखो, यहां से समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान से सुनना। ये पॉइंट्स दे रखे हैं हमने, अलग अलग सिनेरियोस, रुपीज दे रखे हैं, और हमें देखना है रेजिडेंट, ROR, RNOR और नॉन रेजिडेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। ये ट्रीटमेंट आप देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। नाउ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी के मैंने शेयर्स बेच दिए और मैंने रिसीव करा कैलिफोर्निया में, ठीक है, 15,000 रुपए की मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। देखो, ROR होगा तो पूरा टैक्सेबल होगा इंडिया में, डू यू एग्री? यस मैम। ठीक है, और RNOR होगा तो क्योंकि इंडियन कंपनी की है तो भी हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट है तो भी इंडियन कंपनी की तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो 15,000 तो टैक्सेबल इन ऑल दीज 3 केसेस। दिस इज माय केस 1, केस 2 एंड केस 3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। नाउ, डिविडेंड मैंने रिसीव करा जापानीज कंपनी से, जापान में ही रिसीव करा, तो आप क्योंकि ROR हो तो पूरा टैक्सेबल होगा, बट क्योंकि बाहर की इनकम है, आप बाहर ही से ही अर्न कर रहे हो, तो नॉन टैक्सेबल होगा RNOR और नॉन रेजिडेंट के केस में। इज दैट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट है रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन लंडन, later on remitted in India through approved banking channels। आपको प्रॉपर्टी का रेंट मिला 75,000 रुपए का, सो 75,000 माइनस 30% डिडक्शन, एक हमारा कुछ डिडक्शन मिलती है रेंट पे, तो वो मैंने ROR के केस में तो टैक्सेबल कर दिया। पर क्योंकि प्रॉपर्टी भी बाहर की है
और अमाउंट भी आपको बाहर मिला है, सब कुछ बाहर है, तो इसलिए RNOR और नॉन रेजिडेंट केस में ये मेरा टैक्सेबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिविडेंड फ्रॉम RP लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से मिला तो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चरल इनकम आपकी है फ्रॉम लैंड इन गुजरात। एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1). तीनों केसेस में आपका 0 आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, प्लीज टेल मी। यस। एग्रीकल्चर में कोई मतलब वहाँ पे कुछ अमाउंट फिक्स नहीं है मैम? अगर करोड़ों में अगर किसी का ज्यादा जमीन है, ज्यादा और एग्रीकल्चर इनकम से आ रहा है, उसमें कोई टैक्स वाला एप्लीकेबल नहीं है? नहीं, उसमें भी टैक्सेबल नहीं है। तो अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं जैसे सलमान खान एक्सेट्रा, ये लोग क्या करते हैं, इवेंचुअली बाद में जाके ये एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। देखा है आपने, मतलब एनालाइज किया है कभी? नहीं मैम। हाँ, तो मतलब आप देखना, ये जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं इवेंचुअली एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि इनकी इनकम पे टैक्सेबल ना हो। तो एग्रीकल्चर इनकम एक ऐसी इनकम है जिससे आप 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ रुपए भी कमा रहे हो ना, टैक्स नहीं है उस पर। एंड आई पर्सनली नो सम पीपल, क्योंकि मैंने तो RTI फाइल करती हूँ, जिनकी एग्रीकल्चर इनकम से ही से 2 करोड़ 4 करोड़ आ रहे होते हैं। तो मैम ये जो सेलिब्रिटी है ये फिर क्या करते होंगे? एग्रीकल्चर लैंड खरीद के किसी को दे देते होंगे, मतलब हाँ, उसको किसी को बुकिंग? दे देते हैं कि वो काम करते रहे, तो उससे जो भी इनकम आती है, क्योंकि वो तो जमीन भी काफी अच्छी उसमें खरीदते हैं, है ना, तो फिर उसके बाद जो भी उससे इनकम होती है वो सारी की सारी टैक्स फ्री होती है, टैक्स नहीं लगता उस पर। ठीक है। विच आई फील कि टैक्स लगना चाहिए अगर मेरा पर्स, क्योंकि ये देखो एक्ट बना है 1961 में। 1961 में जब इंडिया था वो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर था, डिपेंड ही एग्रीकल्चर पे। तो किया गया, एग्रीकल्चर को एग्जेम्प्ट रखा गया। अब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में ही शिफ्ट हो जाते हैं। लाइक पहले पैसे कमाए, 10 अलग अलग जगह से जमीन खरीदी, फिर एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गए। एंड इसमें अगर आप ढंग से इसमें काम करना चालू करो तो एग्रीकल्चर में काफी पैसा भी बन जाता है, अच्छा खासा, प्रोवाइडेड थोड़ा देख रेख करना पड़ता है, ये जरूर है, बट अच्छा पैसा बन जाता है अगर आपके पास जमीन ज्यादा है एंड ऑल। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडीशंस फॉर RNOR। RNOR की क्या क्या कंडीशंस है, लेट्स सी। तो देखो, अगर कोई डीम्ड रेजिडेंट है वो हमेशा RNOR होगा। ठीक है। तो वो जो डीम्ड रेजिडेंट वाला था ना कि वो किसी भी कंट्री में रेजिडेंट नहीं बन पाया, वो बंदा हमेशा RNOR होगा। ठीक है। नाउ हाँ, अगर कोई डीम्ड रेजिडेंट है वो हमेशा RNOR होगा। नाउ अगर कोई लाइक वो याद है 120 + 365 डेज वाला इन द लास्ट 4 years का एक कंडीशन था, तो मैंने एक्सेप्शन, यस सर, है ना, तो वाला पर्सन भी हमेशा RNOR होगा। ओके, वो वाला पर्सन भी हमेशा RNOR होगा। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल लेट्स डिस्कस अबाउट दीज कंडीशंस, जिसका मैंने इस तरीके से बनाया है। तो एक्ट में ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिविजुअल के बारे में बात करूं, ईदर ही कैन बी अ नॉन रेजिडेंट और ही कैन बी अ रेजिडेंट। तो इंडिविजुअल ले लो या HF ले लो, ईदर ही कैन बी अ नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट, और अगर रेजिडेंट है तो आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी कि RNOR और ROR की क्या कंडीशंस है। एक्ट में जो है RNOR की कंडीशंस डिफाइंड है, मींस रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, की मतलब ये बंदा रेजिडेंट तो है बट नॉर्मली ये रेजिडेंट नहीं बन सकता, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, मतलब थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। ओके, सो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, if there is an individual who is non-resident in 9 out of 10 previous years, if there's an individual who is non-resident in 9 out of 10 previous years, then he is RNOR. Repeating the same, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल, सबसे पहले आपने किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लिया, ठीक है, फिर आप देखोगे रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के बाद कि यार ये जो बंदा है ये पिछले 10 सालों में कितने टाइम नॉन रेजिडेंट रहा। अगर वो पिछले 10 सालों में 9 टाइम्स रहा नॉन रेजिडेंट इन आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, सो दैट मीन्स इसका मतलब है कि वो RNOR है, मतलब रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ओके, इसका मतलब है कि वो RNOR है, मतलब वो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इट्स नॉट कॉमन फॉर हिम कि वो बेसिकली रेजिडेंट बने। और ऑल्सो लास्ट 7 years का स्टे भी हम लोग देखेंगे। So last 7 years के stay में, if is stay in India for 729 days or less in last 7 years, then again he will be considered as
RNOR, वो भी मेरा RNOR कहलाएगा। एंड कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया वाली जो कंडीशन थी और डीम्ड रेजिडेंट थी, वो तो मेरा है ही, वो मेरा RNOR। तो डू यू थिंक कि अगर मेरे को किसी चीज की कंडीशन दे रखी है RNOR की, तो अगर मैं इसी का वाइस वर्सा कर दूं तो वो मेरी ROR की कंडीशन हो जाएगी? डू यू एग्री? यस मैम। यस मैम। अगर मैं इसी का वाइस वर्सा मतलब इसी का अपोजिट कर दूं तो वो मेरी ROR की कंडीशन हो जाएगी। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स है, तो कैन आई से अगर कोई पर्सन रेजिडेंट बन गया इन मिनिमम 2 इयर्स आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, तो वो मेरा ROR कहलाएगा? रेजिडेंट इन मिनिमम 2 इयर्स आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। अगर नॉन रेजिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर होना है, इसका मतलब रेजिडेंट सिर्फ एक साल के लिए अलाउड है। करेक्ट। रेजिडेंट मतलब सिर्फ 1 साल के लिए अलाउड है। डू यू एग्री? यस मैम। अगर वही 2 साल के लिए हो जाएगा तो ये कंडीशन मेरी अपोजिट हो जाएगी। डू यू एग्री? यस मैम। इसका अपोजिट ये है, ठीक है। अच्छा, अगर लास्ट 7 इयर्स मेरा 729 डेज और लेस का स्टे है, तो अगर मैं 730 डेज ऊपर का स्टे करूं तो वो मेरा ROR का कंडीशन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज टेल मी। नहीं मैम, दोबारा एक बार एक्सप्लेन करना। 729 डेज और लेस मतलब 729 डेज तक लास्ट 7 इयर्स में अगर आप रहते हो तो आप RNOR हो। तो 729 से ऊपर अगर आप रहोगे तो आप ROR कहलाओगे। यस मैम। करेक्ट। तो स्टे इन इंडिया इन 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 इयर्स, क्लियर? और ये दोनों कंडीशंस आपकी साथ में फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके आपकी ROR की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इधर RNOR और RNOR कोई भी कंडीशन आप ले सकते हो, अगर वो आपने सेटिस्फाई कर दी तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दिस लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंडरसन क्वेश्चन, and with this our topic will be over for today, and in our next session we will start income under direct salary। देखो, आप लोग मुझे बताओगे कि ये मेरा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? चलो आप लोग बताओ, ट्राई करो। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ROR ही होगा मैम, क्योंकि बिकॉज ऑफ 729 डेज से ऊपर लास्ट 10 ईयर में उसने इंडिया में स्टे किया है। 729 डेज से ऊपर लास्ट उसमें उसने इंडिया में स्टे किया है। काफी बिकॉज Everyone, okay, everyone agrees that he is ROR? Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am, here we are talking about the Australian cricket player, not Indian person, right? So, Yes. उस केस में you will have to explain, ma'am. Then only we can understand. देखो, मैंने क्या बोला था, स्टेप्स करने हैं अपने को, राइट? सो ही इज एन इंडिविजुअल, दिस इज एन इंडिविजुअल, ली एंडरसन। इंडिविजुअल है, and since nothing is given, can I say he is my foreign citizen? Because for Indian citizen or person of Indian origin, the information should be mentioned, right? And since nothing is given, I have assumed that he is my foreign citizen. Okay. Now, I told you that there is always this step number 1. First, we need to define whether he is resident or not. It says stay in India should be 182 days or more. So, Lee Henderson, an Australian cricket player, visits India for 100 days in every financial year. तो every financial year में अगर 100 days है तो कहना है इस साल में भी 100 days ही होगा। So ये कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई नहीं हुई। Do you agree? Yes, ma'am. Now the step number 2 is related to exception when a person comes on a visit to India. For the purpose of employment, etc. But this condition is only applicable when the person is, the individual is is only an Indian citizen. Do you agree? Yes, ma'am. So step number 2 is also not applicable. Let's go to this step number 3.
foreign. This is leaves India, and this is comes on a visit to India. This condition is also applicable for person of Indian origin and Indian citizen. So step number 3 is also not applicable, right? Let's talk about step number 4, which is 60 days or more. Thus, in last 4 years, 365 days or more, right? So if he has lived 100 days in every financial year, and it's been more than 10 years, can I say current year का तो 100 days ही है और last 4 years का 400 days होगा? Do you agree or not? Please tell me. Yes, ma'am. So that means he is resident. Okay, he is resident. Now, if he is resident, then I need to define okay. अब RNOR का कंडीशन है कि वो नॉन रेजिडेंट रहे in 9 out of 10 previous years या in last 7 years 729 days और उससे कम रहे, राइट? अब क्योंकि नॉन रेजिडेंट वाला तो मैं इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकती इस क्वेश्चन से कि वो नॉन रेजिडेंट है या क्या है, तो इस कंडीशन को तो एक बार भूल जाओ. बट 729 डेज और लेस वाला ये मैं चेक कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ईयर्स दे रखे हैं, ठीक है? तो RNOR की कंडीशन अगर आप देखो तो 700 डेज ही रहा है ये. 100 days for every financial year. Do you agree? Yes, ma'am. So therefore, this person is RNOR because this condition is satisfied. Are you getting my point or not? Please tell me. Yes, ma'am. I hope it's clear to every one of you. Is it clear? Yes. Yes, ma'am. Any questions? Then please feel free to ask. मैम अगर डीम्ड रेजिडेंट है उस केस में तो फिर वो हमेशा RNOR ही बनेगा. फिर वो अगर वो R बना है तो हाँ, डीम्ड रेजिडेंट हमेशा RNOR ही बनेगा. Okay. Now, I think I have received one question. Just give me a second. Yes, Priyam. You are saying when an actor acquires agricultural land and then enters into an arrangement with local labor or third party to share the profit derived from that land, what legal principle governs such profit sharing agreements and what potential legal issues could arise? There are no potential legal issues in that case. Normally, this happens generally. So let me tell you what happens कि लोग क्या करते हैं, उनकी जमीन होती है पर टाइम है नहीं. कुछ लोग बेसिकली बाहर रहते हैं, राइट? या कुछ लोग अपना से सिटीज में आकर रहते हैं बट जमीन ऑब्वियसली वहां पर है. तो हम उस जमीन को दे देते हैं थर्ड पार्टी को. तो वो तो एग्रीमेंट है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. उस बंदे की एग्रीकल्चर इनकम नहीं है. डू यू एग्री? मेरी तो एग्रीकल्चर इनकम हुई क्योंकि मेरी तो जमीन है. उस पर्सन की एक तरीके से मैं उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे, भले वो प्रॉफिट शेयरिंग होता है 50-50 होता है मोस्टली यूपी साइड, तो ठीक है, मुझे बाकी स्टेट्स का नहीं पता, बट अगर से 50-50 रेशो पे अगर आप उसको जमीन को दे रहे हो, वो उसकी फीस है बेसिकली, वो उसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी. ओके, ठीक है. Any other questions? If anybody would like to ask, then please feel free to ask. Otherwise, I will wind up the session for now. Chaliye, this is all for today. Thank you everyone and have a great day ahead.